discussing in this chapter, food and nutrition. All living beings need food to survive. Our body uses the food we eat to obtain energy from various internal activities like respiration and digestion and physical activities like playing and walking. Food also helps in the growth of our body. It protects us from many diseases. Food contains substances which provide energy for survival and growth of our body. These substances are called nutrients. The process by which living beings obtain and utilize food for their growth and development is called nutrition. Food and nutrients. Nutrients present in our food can be grouped into different categories according to what they do for the body. Carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals are nutrients. Food also contains roughage and water. Carbohydrates. Carbohydrates are the nutrients which give us energy to do work. Some food items rich in carbohydrates are bread, oatmeal, rice, wheat, potato, sweets and chocolates. Fats. Fats give us more energy than carbohydrates and keep our body warm. Oil, nuts, butter and meat are rich in fats. Proteins. Proteins are the nutrients which help us to grow. They are also called bodybuilding foods. Fish, eggs, meat, cheese, pulses and beans are rich in proteins. Growing children require more proteins and should therefore eat lots of protein-rich food. Vitamins and minerals. Vitamins are the nutrients which help our body to fight diseases. Minerals help in the formation of body components like bones, blood and teeth. Fresh fruit, vegetables, milk, meat and fish are rich in vitamins and minerals. They are also known as protective food as they help us to stay healthy and fit. Roughage. Roughage helps in the proper functioning of the digestive system by moving wastes out of the body. Brown rice, oatmeal, fruit etc. are rich in roughage. Water. Water is very essential for the proper functioning of our body. A balanced diet. The food that we eat on a regular basis forms our diet. Balanced diet contains balanced amounts of all the nutrients, carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals together with roughage and water. We need to take a balanced diet for healthy growth and development of our body. Eating too much or too little of any nutrient can cause diseases. Okay, after this video, let's start our chapter, food and nutrition. जैसे कि अब हमारे लास्ट चैप्टर्स में देख चुके हैं एनिमल्स, प्लांट्स को सरवाइव करने के लिए जिस तरह से हर एक एरिया को, हर एक रीजन को उन्होंने अडॉप्ट किया है, उसी तरह से उन्हें खुद को सर्वाइव करने के लिए फूड ईट करना बहुत ज़रूरी है। तो वही हम इस पार्ट में देखने वाले हैं कि फूड एंड न्यूट्रिशन, जो फूड हम ईट करते हैं उससे हमें क्या मिलता है कि हम खुद को सर्वाइव कर पाते हैं। ओके, लेट्स सी। हाउ डू यू फील इफ यू डू नॉट हैव फूड फॉर 1 or 2 days? यू मे फील एग्जॉस्टेड एंड वीक। अगर हमें 1 या 2 दिन तक खाना ही नहीं मिला, हमने कुछ खाया ही नहीं है, तो हम कैसे फील करेंगे? हम थक जाएंगे और हम खुद को वीक ऐसे महसूस करेंगे कि हम चल नहीं पा रहे, ठीक से बोल नहीं पा रहे, मीन्स हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, ऐसे थकावट हमें आ जाएगी अगर हमने 2 दिन तक खाना ही नहीं खाया है। नाउ थिंक ऑफ अ यंग चाइल्ड हु इज डिप्राइव्ड ऑफ फूड फॉर मेनी डेज। देखिए, हमें क्या सोचना है कि अगर एक चाइल्ड है, यंग चाइल्ड है, उसे अगर खाना ही नहीं मिला है फॉर मेनी डेज, ठीक से खाना उसे मिला नहीं है कुछ दिनों से, तो क्या हो सकता है? विल ही बी एबल टू ग्रो एंड लीव अ हेल्दी लाइफ? क्या उसकी अच्छी ग्रोथ हो पाएगी? क्या पॉसिबल है ये कि अगर उसे अच्छे से खाना नहीं मिल पाया है बहुत दिनों से, क्या उसकी ग्रोथ अच्छे से हो पाएगी जैसे हमें चाहिए, और क्या वो हेल्दी लाइफ जी पाएगा? नहीं। सो
सेकेंड थर्ड स्टैंडर्ड में देखते आए हैं कि हमारा फूड कैसे हमें ईट करना चाहिए कि उसमें सब आना चाहिए। हर जो फूड ग्रुप है जैसे एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग, प्रोटेक्टिव फूड है, उसमें से हर एक फूड हमें थोड़ा बहुत कंसंट्रेशन में वो ईट करने आना चाहिए। तभी हमारी लाइफ कैसे होगी, हेल्दी होगी और हमारी ग्रोथ भी कैसे होगी प्रॉपर। सिर्फ ग्रोथ होना जरूरी नहीं है, तो प्रॉपर ग्रोथ होना जरूरी है, राइट। सो हमारे में जैसे कि हम जो फूड ईट कर रहे हैं तो सब जो ग्रुप के फूड है वो हमें आने चाहिए, हमारे ईटिंग में आने चाहिए। सो अगर हमें ऐसे कुछ मिलता नहीं है तो ना हमारी ग्रोथ अच्छे से हो पाएगी और ना हम हेल्दी लाइफ जी पाएंगे। द आंसर इज नो। सो क्या उसकी ग्रोथ अच्छे से हो पाएगी, क्या वो हेल्दी लाइफ जी पाएगा? सो आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली नो, बिकॉज उसे अच्छे से खाना ही नहीं मिल पाया है। ओके, सो ऑल लिविंग बीइंग्स नीड फूड टू सर्वाइव। इसका मतलब क्या है कि जो लिविंग थिंग है उन्हें जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है? खाना जरूरी है। अवर बॉडी यूजेस द फूड वी ईट टू ऑब्टेन एनर्जी फॉर वेरियस इंटरनल एक्टिविटीज लाइक respiration and digestion and physical activities like playing and walking। देखिए हम मॉर्निंग से जैसे हमारा डे स्टार्ट होता है, सो हम जैसे स्कूल में जाने के लिए रेडी होते हैं, सो फर्स्ट मम्मा क्या कहती है कि दूध पीकर जाना है, राइट। इट मीन्स कुछ नहीं अगर हमने खाया है तो दूध भी हमें क्या देता है? एनर्जी देता है, जब तक हमारा टिफिन टाइम नहीं होता है। ओके, सो ये जो हम फूड ईट करते हैं उससे हमारा जो इंटरनल एक्टिविटीज है, इसमें क्या है? रिस्पिरेशन है, जो ब्रीथ हम करते हैं, रिस्पिरेशन है, डाइजेशन है, जो डाइजेस्ट होता है, उसके लिए क्या जरूरी है? हमें फूड ईट करना जरूरी है। मतलब हमारी जब दिन की शुरुआत होती है तो कुछ कुछ डिस्टेंस से हम जो फूड ईट करते हैं उसके लिए वो क्यों ईट करते हैं? बिकॉज जो हमारा इंटरनल एक्टिविटी है, एक्सटर्नल एक्टिविटी है, जो हम काम करते हैं, चलते हैं, खेलते हैं, उसके लिए हमें क्या ज़रूरी है? फूड ईट करना बहुत ज़रूरी है। फूड ऑल्सो हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा है, अगर उस चाइल्ड को ठीक से खाना नहीं मिल पाया तो ना तो उसकी ग्रोथ अच्छे से होगी जैसे चाहिए और ना वो हेल्दी लाइफ जी पाएगा। सो यहाँ पर हमारा फूड किसके लिए हेल्प करता है? हमारे बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ होने के लिए उसकी फूड की हेल्प होती है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम मेनी डिसीजेस। और ये जो हम फूड ईट करते हैं, अगर हमने प्रॉपर फूड ईट नहीं किया है, हमने खाना ठीक से नहीं खाया है, तो क्या होगा? हमारी जो इम्यूनिटी पावर है वो कम हो जाएगी और इससे क्या होगा? हम बीमार पड़ सकते हैं। अगर थोड़ी सी भी कोल्ड एटमॉस्फेयर आता है तो हमें सर्दी हो जाती है, हम फीवर आ जाता है। सो अगर हम फूड अच्छे से ईट नहीं करते हैं टाइम टू टाइम, अगर हम हमारी ईटिंग हैबिट अगर टाइम टू टाइम नहीं है, सो हम क्या हो सकते हैं? बीमार हो सकते हैं। इसीलिए दिया है इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम मेनी डिसीजेस। अगर हम फूड अच्छे से ईट करते हैं तो वो क्या होता है? हम बीमारी को दूर रखते हैं। Therefore, food is one of the basic needs of living beings। इसके लिए क्या है? फूड, ये क्या है? लिविंग थिंग्स जो है उनके लिए बहुत जरूरी एक बेसिक थिंग है। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट। We eat a variety of food according to our taste and body requirement। We eat a variety of food। हमें कैसे खाना खाना चाहिए? वैरायटी होना चाहिए। जैसे कि हमें सिर्फ ब्रेड जैम पसंद है, ब्रेड केचप पसंद है, या तो सिर्फ पिकल एंड चपाती पसंद है, तो ऐसे नहीं। सो हमारा जो फूड है वो कैसे होना चाहिए? वैरायटी होना चाहिए उसमें। जैसे कि अगर ये हम देख सकते हैं, ये जो प्लेट है इसमें कैसे है? इसमें दाल, चावल, चपाती, पल्सेस, राइस सब है। सो हमें क्या है? इस तरह से फुलफिल हमें ईट करना चाहिए, वैरायटी होना चाहिए, जो कि हमारे बॉडी को रिक्वायर्ड है। Some of us love to eat rice while others like to eat bread or chapatis। Some of us may be vegetarians while others may be non-vegetarian। जैसे कि हमें पता है कि कुछ वेजिटेरियंस होते हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियंस होते हैं। इट मीन्स जो वेजिटेरियंस है वो क्या करते हैं? ओनली प्लांट से उसके पार्ट्स ईट करते हैं। इट मीन्स लीफ वेजिटेबल्स है, पल्सेस है, सिर्फ वो ईट करते हैं। तो
वेजिटेरियन है तो उनकी भी ये जो डिश है इस तरह से फुलफिल होनी चाहिए, दाल चपाती पल्सेस वॉटेवर जो भी वेजिटेरियन के लिए है। और अगर नॉन वेजिटेरियंस है तो उनके लिए जो मीन्स अदर एनिमल्स के फ्लेश को ईट करते हैं, जो एग्स खाते हैं, जो फिश खाते हैं, उन्होंने भी क्या करना है, इस तरह से जो रिक्वायर है हमारे बॉडी को उस तरह से हमारा ईटिंग हैबिट रखना जरूरी है। फूड कंटेन्स सब्सटेंस विच प्रोवाइड एनर्जी फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ अवर बॉडी। सो फूड में क्या कौन से सब्सटेंस होते हैं कि जो कि हमारी बॉडी को एनर्जी देने के लिए, एनर्जी फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ अवर बॉडी। हमारी अच्छे से ग्रोथ कब होगी और हम खुद को कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, अगर हम इस तरह से ईट करते हैं, ना कि कुछ स्पेशल थिंग्स होते हैं कि हमें वही ईट करना पसंद होता है, तो उससे हम खाएंगे, हमें सिर्फ एनर्जी मिलेगी थोड़ी टाइम के लिए, बट हमारी अच्छे से ग्रोथ होने के लिए हमें इस तरह से जो हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए ज़रूरी है वही खाना सब बहुत ज़रूरी होता है। दिस सब्सटेंसेस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। देखिए ये जो है फूड जो कंटेन करते हैं सब्सटेंस, वो क्या है, उसे क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स। और ये हमारी बॉडी की प्रॉपर हेल्थ के लिए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, सो हमें इसे ईट करना चाहिए। द प्रोसेस बाय विच लिविंग बीइंग्स ऑब्टेन एंड यूटिलाइज फूड फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। द प्रोसेस बाय विच लिविंग बीइंग्स ऑब्टेन एंड यूटिलाइज फूड फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। जैसे अगर हम कुछ फूड ईट करते हैं, फूड ईट करने के बाद हम क्या करते हैं, वो जब हमें डाइजेस्ट होता है, उससे डाइजेस्ट होने के बाद उसका क्या होता है हमें पता है, उसका क्या होता है, ब्लड में कन्वर्ट होता है। सो उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज, वो यूटिलाइजेशन अच्छे से होने के लिए कब होगा, जब हम अच्छे से प्रॉपर फूड ईट करेंगे। ओके, सो हमारे जो फूड है इसमें क्या होना चाहिए, इस तरह से फुलफिल होना चाहिए, जिससे जो आपकी हमारी बॉडी को रिक्वायर है। इसी नेक्स्ट फूड एंड न्यूट्रिएंट्स, देखिए इसमें भी क्या दिया गया है, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन अवर फूड कैन बी ग्रुप्ड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू व्हाट दे डू फॉर द बॉडी। देखिए जो हम फूड ईट करते हैं वो डिफरेंट कैटेगरी में होते हैं। क्या क्या है, दिस कैटेगरीज आर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, vitamins and minerals. Besides this, food also contains roughage and water. देखिए जो हम फूड ईट करते हैं, लीफी वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, जो हम ईट करते हैं, ऑयली थिंग्स है जो हम ईट करते हैं, वो तो है। इसी के साथ फूड also contains roughage and water। इसी के साथ देखिए हम ये ईट तो करते हैं, बट हमारे बॉडी के लिए वाटर भी उतना ही ज़रूरी है, राइट। इसके पहले के क्लासेस में हम देख चुके हैं कि हमें कितना वाटर पीना ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए। 8 to 10 ग्लासेस वाटर बहुत ज़रूरी है हमें पूरे होल डे में पीना। सो उसी तरह से कुछ डाइट फूड होते हैं, वो भी हमें ईट करना बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरह से और जो हमने अब तक देखा है, हमारे जो ईटिंग हैबिट है उसमें ये सब आना ज़रूरी है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इन डिटेल हम आगे देखने वाले। फर्स्ट हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट्स? कार्बोहाइड्रेट्स आर द न्यूट्रिएंट्स व्हिच गिव अस एनर्जी टू डू वर्क। इसके पहले हमने क्या देखा है, एनर्जी गिविंग फूड कौन से है वो देखा है। ओके, सो एनर्जी गिविंग फूड में ही क्या आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। सब फूड आइटम्स व्हिच रिच in carbohydrates are bread, oatmeal, rice, wheat, potato, sweets and chocolates. So carbohydrates किस में होते हैं, bread, oatmeal, rice, wheat, potato, sweets and chocolates। इनमें क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि हम कहते हैं कि हमें ईट नहीं करना चाहिए ब्रेड, उसी तरह से चॉकलेट्स, बस कुछ क्वांटिटी में इसे ईट करना भी हमें ज़रूरी है, बिकॉज ये हमारी बॉडी के लिए इसमें से जो कंटेंट्स है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, वो बहुत ज़रूरी है। पीपल लाइक स्पोर्ट्स पर्सन एंड लेबरर्स
क्या ज़रूरी है? कार्बोहाइड्रेट्स, इट्स मीन्स ये ईटिंग करना बहुत ज़रूरी है। बिंगोज नॉलेज मैन, बिंगो के पास कौन सा नॉलेज है इसको लेके देखते हैं। वी शुड ईट द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स टू fulfill our body's needs. If we eat less, we feel tired, and if we eat more, we can become fat. अगर कार्बोहाइड्रेट्स हमें we should eat the required more amount of carbohydrates to fulfill our body needs. हमें जैसे कि हमें पता है कि हमें इसमें से कुछ फूड ईट नहीं करना चाहिए, चॉकलेट है, ब्रेड है, बट इसे ईट करना ज़रूरी है बिकॉज हमारी बॉडी को इसकी रिक्वायरमेंट होती है। और इसे अगर हम कम ईट करते हैं तो हम कैसे फील करते हैं? टायर्ड। और अगर हम हम हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट से अगर ज़्यादा ईट करते हैं तो हम कैसे फील करते हैं? क्या होता है? फैट पड़ता है इससे। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट। सो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स, यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है। लेट्स सी remaining part in next part.